हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मॉर्निंग रूटीन व्लॉग। अगर आप मेरी रील्स देखते हो तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि मैं सुबह क्या रूटीन फॉलो करती हूँ। बट टुडे आई थॉट आई विल शेयर द व्हाई बिहाइंड इट एंड हाउ इट हेल्प्स मी मेंटली एंड फिजिकली। Because honestly, if you want to have a great day, start with a great morning. And this is what my morning looks like, whether it's a weekday or a weekend. तो दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं कॉफ़ी से। And it's not just about having coffee, it's about sharing the initial moments of the morning with each other. The next thing I do is exercise. आजकल मैं एक होम वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रही हूँ. It's by a creator called Sydney Cummings. मैं कुछ दिन घर से वर्कआउट करती हूँ, कुछ दिन जिम से, या तो कुछ दिन सिर्फ वॉक कर लेती हूँ. Whatever it may be, the point is to just get my body moving, get the blood flowing and get my energy levels up. And this is your 40-minute power Pilates workout. So grab your light dumbbells and let's get started. You have made it to your cool down. I'm gonna give us a really nice, long, beautiful stretch flow here. And up, lean forward with it. Up, up, up with your chin. Ceiling, or maybe just lift it here as you open hands up, big deep breath in. Bring it right down to your chest. One more time, big deep breath in. Hands back down to your chest. We're building physical strength every day, but mental strength has to accompany where your body's going. It has to kind of lead the way for where your body is going. So don't forget right here. Don't forget right here, okay? So the workout for today is done, which means I will be feeling energetic and focused for hours. और बस थोड़ा अच्छा लगता है just the fact कि 9 बजने से पहले मेरा वर्कआउट खत्म हो गया. It gives me a sense of accomplishment which motivates me further to do other things. तो ऐसी छोटी छोटी achievements से हम motivated और positive feel करते हैं, which enables us to take on bigger tasks. और वो करके और भी अच्छा feel होगा and that will push you to do even more. So you can see how this reaction kind of creates a very positive cycle. इसके बाद while my body cools down, I like to listen to some affirmations. Affirmations are basically positive self-talk. और ये सुनते सुनते I try to tidy up my house. अगर मेरा घर गंदा होता है तो my mind also starts to feel very disorganized. So why do I listen to this positive self-talk? Imagine करो सुबह आप कहीं गए, मान लो ऑफिस गए, and the first person you met makes some negative remark about your work. And the next person you meet says something bad about your parents, like, oh, you look like you haven't slept in days. And the next person you meet says some rude thing to you. तो इन सब interactions के बाद आपका mood कैसा होगा? Your energy will be down and you'll feel like shit already, and which will impact the rest of the things you do that day. इसकी जगह सोचो, if all 3 interactions were positive, the first person complimented you on your work, the second complimented you on your parents, and the third one was friendly. How will you feel after all these interactions? You will feel energetic, motivated, and this will have a positive impact on the rest of the things you do. अब थ्रू आउट द डे सब लोग पॉजिटिव बोलेंगे, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हम अपने आप से क्या बोलते हैं वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं.
और लोगों के ओपिनियन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका खुद का ओपिनियन अपने बारे में। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक ज़रूरी है। पूरा दिन हम अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अब सोचो अगर सिर्फ 3 लोगों के नेगेटिव कमेंट से आपका मूड इतना खराब हो सकता है, तो खुद से की गई 10 नेगेटिव बातें आपका दिन कितना बिगाड़ सकती हैं। तो क्या ये बेटर नहीं होगा कि हम खुद से थोड़ा प्यार से बात करें? सिर्फ सुबह नहीं, पूरे दिन जब भी कोई नेगेटिव या डाउटफुल थॉट आए, उसे कॉन्शियसली रिप्लेस करो किसी पॉजिटिव थॉट से। ये एक हैबिट है और थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में, और शायद हमारी डिफॉल्ट सेटिंग ही बन गई है खुद पे डाउट करना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना। यू आर एक्चुअली केपेबल, बट फिर भी अगर आप खुद को बार बार नेगेटिव फीडबैक दोगे तो इट्स ओनली मेकिंग योर लाइफ वर्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस आंख बंद करके खुद को परफेक्ट समझना शुरू कर दो। अगर कोई जेन्युइन फ्लॉ या बिहेवियर इशू है तो एक्सेप्ट करो, उसको इम्प्रूव करो विदाउट बीइंग टू हार्श ऑन योरसेल्फ। बट अक्सर ये होता है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक किसी रियल बेसिस पे नहीं होती है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द नेगेटिव थिंग्स यू से टू योरसेल्फ, आर दे एक्चुअली ट्रू or is it just baseless self-doubt? If there's just one thing that I want you to take away from this video, that would be it. Please be mindful of how you speak to yourself. It has a huge impact on your self-esteem and confidence. And with that, I'm ready to go now and do some work for today. I'm not happy with how my hair looks right now, but I think थोड़ी देर में पसीना सूख जाएगा तो it'll look better. ठीक है, मुझे निकलना चाहिए, थोड़ा लेट हो रहा है। बाकी की बातें हम रात में करेंगे। Okay, so we were on the topic of discussing some of my habits from my daily routine, and I wanted to talk about 2 more things before I wind this up. And I don't necessarily do these 2 things in the morning, जब भी टाइम मिले, या तो लंच टाइम पे या तो नाइट टाइम पे। So the first thing is reading. जैसे जब हमें किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना होता है, maybe related to computers or medicine, what do? We read a lot of books about it. अपने करियर में भी एक्सेल करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो similarly मुझे लगता है कि we should also read books about life, about how to navigate through life, like how to understand our emotions, or maybe what tools people have learned with their experience of life that can help us live a better life. मुझे लगता है कि हमसे पहले कितने सारे लोगों ने आके जिंदगी जी है, उनके कितने सारे experiences रहे होंगे। हम कुछ तो वैल्यूएबल चीजें उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद एवरीथिंग ऑन आवर ओन। अब ये सब तो हमें फॉर्मली कोई नहीं सिखाता है, बट आई थिंक इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। इट विल बी हेल्पफुल टू रीड द इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड बिफोर अस, और द पीपल हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू रिसर्च अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑल्सो आई डोंट थिंक इट नेसेसरली नीड्स टू बी रीडिंग। आप सुन सकते हो, देख सकते हो, बस किसी ना किसी तरीके से कुछ इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करो जो आपकी थिंकिंग को, अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करे, जिससे आप कुछ ढंग का सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करके यू कैन मेक अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। एंड ऑन द टॉपिक ऑफ बुक्स, आई डू हैव वन सजेशन इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट रीडिंग। देयर इज दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स व्हिच आई हैव read twice by now. It is full of practical advices and I would highly recommend it. But don't read it just for the sake of finishing it. आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, देखना अपनी लाइफ में आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। बस ऐसे रीड करके नहीं छोड़ना, you have to actually implement it. And the last thing I do is journal. इसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है मेरे स्केड्यूल में, या तो आफ्टरनून में या तो रात में कर लेती हूँ। मैं इसमें पहले तो ब्रीफली दिन के इवेंट्स को रिकैप करती हूँ, देन आई रिफ्लेक्ट ऑन हाउ एम आई फीलिंग, देन आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई एम आई फीलिंग द वे आई एम फीलिंग। अगर अच्छा फील कर रही हूँ तो व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू दैट एंड हाउ कैन आई कंटिन्यू दैट। अगर खराब फील कर रही हूँ तो क्यों, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? इफ यस, लेट्स ऐड दैट एक्शनेबल आइटम टू माई टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे. If I can't do anything about it, take a deep breath and let it go. I also like to reflect what was I grateful for today and what I could have done better. This self-reflection has really helped me understand my behavior patterns better. और किसी चीज की जितनी ज्यादा समझ हो उससे डील करना उतना ही आसान होता है, तो इसलिए खुद की समझ रखना भी जरूरी है. And then finally, I like to make a to-do list for the next day as it helps me to manage my time better and stay organized. Next day I don't have to waste time thinking कि कब क्या करना है. तो ये सब चीज़ें मैं मोस्ट ऑफ द डेज कर लेती हूँ, एकदम स्ट्रिक्टली डेली भी नहीं कर पाती, ऑब्वियसली कभी कभी ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ, बट आई हैव ऑल्सो मेड अ सिस्टम दैट हेल्प्स मी बाउंस बैक. मे बी आई विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो. वैसे अभी 8:30 बज चुके हैं, मेरे हस्बैंड 5-10 मिनट में पहुँचते ही होंगे, तो आई विल गो एंड गेट स्टार्टेड विद द डिनर प्रेपरेशन टिल देन. एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग द डे विद मी. गुड नाइट, टेक केयर.